Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically I'm going to start a new foundation course for class ninth, in which I will provide you short notes of each and every chapter. For example, today I will start the chapter statistics. And basically these chapters are also useful for your general aptitude purpose for CSI and NET and other competitive exams, you can say. Basically myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start today's lecture. So basically today we will cover these topics: statistics, bar graph, histogram, and frequency polygon. So it's our first topic, which is statistics. So basically what is statistics? Basically it is a branch of mathematics in which we will study about the data, and we will analyze the data, review the data, and with the help of these data, whatever conclusions we will get, basically with the help of these conclusions we can draw graphs. For example, we can draw three types of graphs there. The first graph is bar graph, the second type of graph, it is histogram, and the third graph is frequency polygon. So write down the first heading, which is bar graph. See, let's suppose you have some objects, like suppose you have some objects A, B, C, and D. These are some objects, and here you have number of objects. For example, object A is 4, object B is 2, object C is basically, you can say, 10, object D is 6. Then my question is, you have to draw the bar graph. Okay, so basically in this case of bar graph, you have to consider first of all that whatever objects you are seeing here, means यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनको हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेंगे, और जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उनको हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लेंगे. जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया. ओके, सो आई हैव ड्रॉन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसको हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस. नाउ लेट सपोज कि हमने ऑब्जेक्ट्स को एक्स एक्सिस पर अगर ड्रॉ किया, सो इट इज माय ऑब्जेक्ट ए, इट इज ऑब्जेक्ट बी, इट इज ऑब्जेक्ट सी एंड इट इज ऑब्जेक्ट डी. और हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तो इनको हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो फॉर ऑब्जेक्ट ए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4 थे, तो हम ऑब्जेक्ट ए के लिए एक बार बनाएंगे जो कि 4 तक जाएगा, एंड सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट बी के लिए भी एक बार बनाते हैं जो कि हमारे पास 2 तक जाता है, और ऑब्जेक्ट सी के लिए हम एक बार बनाएंगे जो कि 10 तक जाएगा. फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सी को डिनोट कर रहा है कि सी का बार है ये हमारे पास. ओके, एंड फॉर डी इट इज 6. तो 6 के सामने यहाँ पे हम एक बार बना देंगे to denote C. So basically this graph is called bar graph in statistics. So this graph is called as bar graph. It is very easy graph in which you will get two things only. The first step to draw the x-axis with objects, and the second step
to draw the number of objects in y-axis and then draw graph for each objects. Okay. Now the second thing is, the second type of graph is histogram. Okay. So basically in histogram basically हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हमें गिवन होगा क्लास इंटरवल्स. सो इन क्लास इंटरवल्स को हम लोग एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और क्लास इंटरवल्स के साथ साथ हमें दी होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है. सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि आपके पास कोई डेटा है 2 2 2 3 3 4 3 5, ये हमारे पास एक डेटा है. अब अगर मैंने पूछा कि टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, तो देखिए 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 विल बी 3. अगर मैं पूछता हूँ कि टेल मी द फ्रीक्वेंसी of 3, then see here 3 repeats again 3 times, so frequency of 3 will be 3. And अगर मैं आपसे पूछूं कि tell me the frequency of 4, तो 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, only 1 time, so frequency of 4 will be 1. Similarly frequency of 5 will also be 1. तो अगर हमें कभी भी क्लास इंटरवल दे दिया जाए एंड फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए, तो हम क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑन वाई एक्सिस, एंड देन वी विल क्रिएट द हिस्टोग्राम. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका. सपोज हमें एक क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट करता हूँ. सो क्लास इंटरवल हमारे पास है लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और हमारे फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 6 2 और हमें ड्रॉ करना है देन ड्रॉ हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इजी. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं. सी इन एक्स वाई एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स को ड्रॉ करना है. तो क्लास इंटरवल्स हमारे पास ये हो गया 0, इट इज 10 20 30 एंड 40. एंड ऑन द वाई एक्सिस वी विल ड्रॉ अवर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी देखिए हमारे पास 5 से है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 and 6. So in the class interval 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी हमें 5 गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि 10 से 20 तक का हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि 5 वैल्यू कंसीडर करता है लाइक दिस. एंड देन 20 to 30 के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 गिवन है. सो फ्रॉम 20 to 30, 20 से 30 के लिए हम 6 वैल्यू तक की एक अनदर ग्राफ बनाते हैं. देन फ्रॉम 30 to 40 द फ्रीक्वेंसी इज 2. सो 30 to 40 के लिए हम लोग 2 वैल्यू तक का एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस. और इन सब के बीच में कोई गैप नहीं होता बिकॉज द वैल्यूज आर कॉन्टिन्यूअस. अगर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए तो जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस. जैसे 10 से 20 के बाद ये 20 ही यहाँ पे रिपीट होगा, देन 20 to 30 के बाद 30 फिर से रिपीट हो जाएगा. सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स. तो जब कभी भी हमें कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होंगे तो उस केस में हिस्टोग्राम इस तरह से बनाए जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज हिस्टोग्राम. नाउ द थर्ड टॉपिक इज our frequency polygon. Frequency polygon. Okay. So basically in frequency polygon हमें हमारे पास क्या होते हैं, इन frequency polygon हमारे पास class intervals होंगे in the question
और उन क्लास इंटरवल्स को जिस तरह से हम हिस्टोग्राम में ड्रॉ करते थे, बिल्कुल सेम उन क्लास इंटरवल्स को हमें एक्स एक्सिस पर ड्रॉ नहीं करना। बेसिकली यहाँ पे क्या चेंज होता है कि क्लास इंटरवल्स के थ्रू सबसे पहले हमें क्लास मार्क्स निकालने होते हैं। इट इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, सर एक्चुअली क्लास मार्क होता क्या है? सो क्लास मार्क इज नथिंग बट इट इज द लोअर वैल्यू, or you can say the lower limit. It is lower limit plus upper limit divided by 2, means basically it is the average of your class interval. अभी मैं इसको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, इट इज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और हमें बताना है कि इनके क्लास मार्क्स क्या होंगे। क्लास मार्क को हम लोग सी एम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एंड क्लास इंटरवल्स को सी आई लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो क्लास मार्क्स ऑफ 20 to 30, तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट इज 20 हियर, सी द लोअर लिमिट इज 20, द अपर लिमिट इज 30। तो हमने क्या किया, 20 इज लोअर लिमिट, 30 इज अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाई 2, मीन्स एवरेज ऑफ लिमिट्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 प्लस 30 इज 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, तो क्लास मार्क हमारे पास आ गया 25। सिमिलरली क्लास मार्क फॉर 30 to 40, सो 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स इट इज 35। तो यहाँ आ गया हमारे पास क्लास मार्क 35। सिमिलरली फॉर दिस हमारे पास क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क फॉर दिस शुड बी 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इज 90 by 2, so it is 45, so class mark becomes 45. So in this way we can easily calculate the class marks. Now, तो अब हमने क्लास मार्क निकालना सीख लिया। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होती है, और इन क्लास मार्क्स को हम लोग एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं, एंड हमें एक फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, जो कि सिमिलरली फ्रिक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर ही ड्रॉ करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल्स हमें लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, और उनकी फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 2, 4, 6 एंड 5, ये हमारे पास उनकी फ्रिक्वेंसीज गिवन है। या फिर मैं फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा बढ़ा के आपको लिख लेता हूँ, जैसे कि आपको समझने में ईजी हो। सो लेट्स सपोज इट इज 10 एंड इट इज 6। नाउ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो सी हियर 10 plus 20, for this 10 plus 20 it is 30, 30 divided by 2, 50, then 20 plus 30 it is 50, and 50 divided by 2 it is 25, then 30 plus 40 70, 70 divided by 2 35, and then 40 plus 50 it is 90, 90 divided by 2 45. So अब हमने क्लास मार्क्स मिल गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क्स को एक्स एंड वाई एक्सिस पर हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो इट इज़ माई एक्स वाई प्लेन, जहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को बोल दिया इट इज़ क्लास मार्क्स, एंड वाई एक्सिस विल बी अवर फ्रिक्वेंसी। सो क्लास मार्क्स में हमें क्या क्या मिले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ 15। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो जीरो हमारे पास ये होता है, एंड 15 इज वेरी लार्ज वैल्यू फ्रॉम जीरो, तो हम क्या करते हैं कि अपने एक्स वाई एक्सिस पर एक छोटा सा कट लगा देंगे जब भी हमारे पास कोई बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। सो ये हमने मान लिया 15, देन it is basically 10 gaps, so I can directly write, let's suppose it is 25, 35 and 45. Now frequency will be here 10, sorry, it is not frequency, frequency is given to me
up to 10. So it is 2, 4, 6, 8 एंड 10. ये हमने फ्रीक्वेंसी मान ली जिसमें हर नंबर के बीच में 2 का गैप. नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो 15 क्लास मार्क 15 के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है. तो 15 क्लास मार्क और 2 फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है. सिमिलरली 25 क्लास मार्क्स के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है. तो 25 एंड 4 को देखूं तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा. 35 के लिए हमें फ्रीक्वेंसी 10 मिल रही है. सो 35 एंड 10 के लिए हमारे पास एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर यहाँ मिल जाएगा. एंड सिमिलरली 45 क्लास मार्क एंड उनकी फ्रीक्वेंसी 6. सो 45 एंड 6 के लिए हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी यहाँ मिल जाएगी. तो अब हमें क्या करना होगा. नाउ वी विल जॉइन ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द ओरिजिन. जैसे कि ओरिजिन हमारे पास था तो ओरिजिन से हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन किया. देन इस पॉइंट से सेकेंड पॉइंट को ज्वाइन किया. देन सेकेंड पॉइंट से वी विल ज्वाइन द थर्ड पॉइंट. एंड इस थर्ड पॉइंट से वी विल ज्वाइन द फोर्थ पॉइंट. एंड आफ्टर दिस फोर्थ पॉइंट इट विल गोज लाइक दिस. So this is called the frequency polygon curve. This is called basically frequency polygon curve. So with the help of these concepts, you can solve any type of questions which are asked in class 9th as well as in the competitive exams. Thank you.